Hello, welcome everybody. I am Pratyush Saini, a first year undergraduate at IIT-Delhi. Now we are going to start the chapter Conic sections, which is chapter 11 of the class 11th Mathematics. Now इस वीडियो में हम देखेंगे about various sections of a cone and then we will study circles in detail. Now let us first go through the introduction of the chapter. So in this chapter, we are going to study about some curves like the circle, parabola, ellipse and hyperbola, which are grouped under the common category conic sections or simply conics. तो हम इन चारों कर्व्स को एक कॉमन कैटेगरी के अंदर ग्रुप करते हैं. We call this as conic sections और या फिर simply conics. So a conic is the set of all points P in a plane such that the distance of P from a fixed point is in a constant ratio to the distance of P from a fixed line which do not contain that fixed point. So a conic होता है उन सब पॉइंट्स का लोकस जिसकी अगर हम रेशियो लें एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस की और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस की, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो कांस्टेंट होता है. ओके, so these curves are obtained by intersection of a plane with the double napped right circular cone. So let us first see what is a double napped right circular cone. तो अगर आप एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और एक स्लैंटेड लाइन लेते हैं जिसका स्लोप होता है m and the angle between these two lines is alpha. तो अगर आप इस स्लैंटेड लाइन को रोटेट करते हैं about this vertical axis, then you obtain this type of figure. This is known as a double napped cone. इसके अपर हाफ को हम कहते हैं अपर नैप एंड इसके लोअर हाफ को हम कहते हैं लोअर नैप. एंड दिस वर्टिकल लाइन वी कॉल दिस एज एक्सिस एंड दिस स्लैंटेड लाइन वी कॉल दिस एज द जनरेटर. ओके, सो हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व ऑब्टेन कर सकते हैं एक प्लेन की इंटरसेक्शन से इस डबल नैप्ड कोन पे. तो अगर हम उस प्लेन की ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं तो हम वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स. So we can obtain different kinds of conic sections depending on the position of the intersecting plane with respect to the cone and by the angle made by it with the vertical axis of the cone. Let beta be the angle made by the intersecting plane with the vertical axis of the cone. So इस cone का semi vertical angle होगा alpha और ये जो प्लेन हमारी वर्टिकल एक्सिस से एंगल बनाएगा दैट वी कॉल एज बीटा. तो अब हम देखेंगे कैसे हम प्लेन की ओरिएंटेशन को चेंज करके मतलब एंगल बीटा को चेंज करके कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स ऑब्टेन कर सकते हैं. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ कर्व इज सर्कल्स. सो अगर ये बीटा 90 डिग्री होगा मतलब दिस वर्टिकल एक्सिस एंड द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमारा जो सेक्शन ऑब्टेन होगा दैट वी कॉल अ सर्कल. तो हम सर्कल की अब जनरल डेफिनेशन देखते हैं. अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑन इट रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट. तो एक सर्कल उन सब पॉइंट्स का लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहती है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कर्व इज एन एलिप्स. Now when alpha is less than beta and beta is further less than 90 degree, तो हमारा जो section obtain होगा that we call as ellipse. So an ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distance from the two fixed points in the plane is constant. तो ellipse उन सब points का locus होता है जिसकी distance का sum एक दो fixed point से constant रहता है. For example, अगर हम इस curve पे कोई भी point लें एंड उसकी डिस्टेंस का सम करें तो इट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व. फॉर एग्जांपल इस कर्व में अगर हम एक पॉइंट P लेते हैं एंड दोज टू फिक्स पॉइंट्स आर F एंड F डैश, तो PF प्लस PF डैश विल बी कांस्टेंट. लाइकवाइज इफ विल टेक एनी अदर पॉइंट लाइक P डैश और P डबल डैश देन P डैश F प्लस P डैश F डैश विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट. ओके, सो ऐसे हम एक इलिप्स को प्लॉट कर सकते हैं. Now the third type of curve is a parabola. Now अगर beta and alpha are equal, then the section obtained is known as a parabola.
ठीक है, तो अगर अल्फा और बीटा इक्वल होंगे तो जो हमारा सेक्शन ऑब्टेन होगा दैट वी कॉल एज पैराबोला. So a parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. So parabola की जनरल डेफिनेशन होती है उन सब पॉइंट्स का लोकस जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से इक्वल होती है डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. तो जो हमने रेशियो शुरू में डिफाइन करा था डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, तो इस केस में वो रेशियो 1 होगा बिकॉज दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल. तो द लास्ट टाइप ऑफ कर्व इज हाइपरबोला. सो अब तक आपने देखा कि जब भी हम प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो बस एक हाफ से इंटरसेक्ट होता है और दूसरे हाफ पे कोई इफेक्ट नहीं आता. ठीक है, सो इन हाइपरबोला अगर हम प्लेन को इंटरसेक्ट करेंगे विद डबल नैप कोन तो वो दोनों हाफ्स पे इंटरसेक्ट होगा. Now when beta is less than alpha and both are greater than 0 degree, then the plane cuts through both the naps and the curve of intersection is a hyperbola. तो ये जो प्लेन है ये दोनों नैप्स को इंटरसेक्ट करेगा. A hyperbola is the set of all points in a plane, the difference of whose distances from the two fixed point in a plane is a constant. So जैसा हमने अभी इलिप्स में देखा कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम इज अ कांस्टेंट, सो ऐसे ही हाइपरबोला में भी होता है, बस इस केस में उनका डिफरेंस कांस्टेंट रहता है. ओके, सो उन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस विल बी अ कांस्टेंट for all the points on the hyperbola. Now we are going to see the topic circles and in detail. Now let us see some general terms related to a circle. तो सर्कल हमने देखा कि उन सब पॉइंट्स का लोकस होता है जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होती है. नाउ इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है दैट वी कॉल एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ लेट अस ऑब्टेन द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. सो हम एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर होगा C which has the coordinates h, k. Let C, h, k be the center of the circle and R be its radius. और अगर हम एक इस सर्कल पे कोई भी एक जनरल पॉइंट लेते हैं P having coordinates x, y, then we can use the distance formula to write the equation x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. So this is obtained by the distance formula. What is distance formula? हम अगर इस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस निकालें that will be equal to constant which will be equal to radius of the circle. So the distance by the distance formula we have under root x minus h squared plus under root y minus k squared is equals to r. So अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करें तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी. ना अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें देन वी विल गेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड माइनस आर स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0. सो इसको ओपन करके हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन होगी. अब अगर हम इसे एक मोर जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं. So x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. ये एक जनरल इक्वेशन होगी सर्कल की, where this c will be a constant because h and k are constant and radius of circle is also constant. So this term h squared plus k squared minus r squared will be constant. Now we will see about the radius and center of the circle. So हमारे पास सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और सर्कल का सेंटर है हमारे पास h, k एंड वी हैव द रेडियस ऑफ सर्कल एज r. तो अगर हम इस जनरल इक्वेशन को एच के टर्म्स में जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करें तो वी विल गेट द सेंटर ऑफ सर्कल एज माइनस g, माइनस f. अगर आप x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें देन यू विल गेट 2g इज इक्वल्स टू माइनस 2h, सो g विल बी इक्वल्स टू माइनस h.
तो h will be equals to minus g. Likewise k will be equals to minus f. So अगर हम c और h squared plus k squared minus r squared को equate कर दें, then we will get the square of radius as h squared plus k squared minus c. तो अगर हमें एक रियल सर्कल चाहिए, then we should have this term as positive. और एक पॉइंट सर्कल के लिए दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 0. अ पॉइंट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 0 होता है, और एक इमेजिनरी सर्कल के लिए दिस टर्म विल बी नेगेटिव, दैट इज r विल बी इमेजिनरी. तो उस केस में सर्कल रियल नहीं होगा. नाउ एट द लास्ट वी विल सी अबाउट इंटरसेप्ट्स ऑफ अ सर्कल. So the intercept of a circle are the lengths of segment cut by the circle on the coordinate axis. तो एक सर्कल जो डिस्टेंसेस कट करेगा x एक्सिस और y एक्सिस पे, that we call as intercepts of the circle. So in this case, this distance AB will be equal to the x intercept and this distance DE will be equal to the y intercept. तो अगर हमें इक्वेशन गिवन है सर्कल की एक जनरल फॉर्मेट में, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं intercepts of the circle. हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? So we can find the intercepts by considering the equation as quadratic in either x or y and thereafter finding the absolute difference between the roots. For example, अगर आपको x intercept निकालना है, so first of all you have to find the x coordinate of these two points a and b. तो अगर आप इसको एक x में quadratic consider करें and you find the roots of that quadratic equation, so अगर आप उन दोनों रूट्स का डिफरेंस लेंगे, then you will get the length of this intercept. So that the length will be the modulus of the difference between the roots of the quadratic equation. Similarly, हम y intercept भी obtain कर सकते हैं. Okay. So that is the end of the topic circle, and thank you for watching the video.